Hello my dear students, how are you all? Today we are going to discuss about the answer key of the quiz competition on life sciences which has been organized on 30th and 31st July 2020. For effective communication and to reach the main objective of this, of producing or of making this audio visual answer key is to reach to maximum students and to make them understand about the basic concepts of the topic in a clear manner. So here in this audio visual, we are using bilingual language to communicate you about the concepts. Moving towards the question number 1, fungi. As we know, here you can see what are fungi. It is asking you about the term fungi, or what do you mean by that? So here given 4 options, and we know that fungi, they are achlorophyllous, they are non-pigmentic eukaryotic organisms. So if they are achlorophyllous, मतलब कि अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर्स तो कभी भी नहीं हो सकते, बिकॉज हमको पता है कि प्रोड्यूसर रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्राइटेरिया होता है कि उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. फिर सेकेंड आएंगे कैनॉट ईट एन एंगल फूड. So as we know that fungi, they are saprophytic and parasitic mode of nutrition वो exhibit करते हैं. And saprophyte का main क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं? Digestive juices को absorb करके अपना nutrition derive करते हैं. So we can say that second option might be correct. Now we are moving towards the third one. They are found only in soil. ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि हमको पता है कि fungi जो है वो हर जगह मिलता है. It is also present in the air, in water, in everywhere, right? So it is not confined to soil. So ये भी गलत. Then the last option is they are primarily single cell. As we know that fungi, they falls under 2 categories. Means fungi they are unicellular, that is called as usually yeast जो होता है वो उस category में fall होता है, और the second one is they are multicellular जिसमें कि molds होते हैं. तो हमने ये देखा कि हमारा सही option क्या हुआ fungi को लेके. So the second option is correct, that the fungi cannot eat or engulf food, right? Because it is usually done by amoeba. Now we are moving towards the next question. The second question, animal like protist. अब what do you mean by protist? ना देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता है कि protist जो है ये organisms है जिनको कि किसने क्लासिफाई किया था? रेनस्ट हैकल जो थे, रेनस्ट हैकल ने 3 किंगडम कंसेप्ट प्रपोज किया था, जिसमें कि उन्होंने 3 किंगडम कॉन्सेप्ट में एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा को ग्रुप किया था. ठीक है. एंड व्हाट वी नो अबाउट दिस प्रोटिस्ट, दैट they are unicellular, eukaryotic and multicellular organisms. ठीक है, जिसमें कि algae जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि they are also known as protozoa. Yes, exactly, protozoa जो होते हैं प्रोटिस्ट कैटेगरी में आएंगे. They include amoeba and paramecium. बिल्कुल ये भी ठीक है. Then C option is may. They may move and be free living और parasitic. ये भी सही है कि वो क्या कर सकते हैं? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. और parasitic मतलब क्या होता है? We know that parasitic means परजीवी, जो दूसरे की बॉडी में क्या करते हैं? रिसाइड करते हैं. सो ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द सही ऑप्शन विल बी, सही आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, राइट? देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. ऑलमोस्ट ऑल एल्गी लिव. अब देखिए, एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल एल्गी की स्टडी को कहलाते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, फाइकोज वर्ड से जो है वो लिया गया है. एल्गी जो शब्द की उसकी उत्पत्ति हुई है या उसका ओरिजिनेशन हुआ है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीवीड. Right. So here what we know that 99% और 90% algae usually जो होते हैं वो aquatic होते हैं. ठीक है, लेकिन बाकी के algae जो होती हैं वो, मतलब कुछ algae terrestrial भी होती हैं, कुछ moist habitat में मिलती हैं. Right. So we can say that as we know that 99% of algae they lives in water. So the third option will be correct. Then question number 4. Most of the world's oxygen is produced by. अच्छा, हमको जैसे पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है? By means of the process of photosynthesis. As we know that this photosynthesis it is performed by whom? By the autotrophic organisms. और हमको क्या पता है कि जो वाटर में फाइटोप्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? They are chlorophyll bearing organisms. So प्रोटोजोआ यूजुअली डज नॉट बियर क्लोरोफिल. फंजाई का हमको पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इन क्वेश्चन नंबर 1 की फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्लोरोफिलस होते हैं. लाइकेंस क्या होती है? लाइकेंस यूजुअली एसोसिएशन होता है किसका? इसका आपका एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं. सो जो थर्ड ऑप्शन होगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, ये सबसे अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि यही फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. राइट.
Now, the fifth question. Pineapple can be made to flower in off seasons by. मतलब pineapple को आप off season में क्या चीज यूज करेंगे कि वो क्या हो जाए, फ्लावर हो जाए? जियाटीन. What is जियाटीन? हमको क्या पता है जियाटीन क्या होता है? एक तरीके का नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन होता है, ठीक है. इट इज अ प्लांट हार्मोन जो किससे डिराइव होता है? तो इट इज डिराइव फ्रॉम एडेनिन and it promotes the growth of the lateral buds, and here we are talking about pineapple. So the second option is ethylene. As we know that ethylene is a plant hormone, plant growth hormone होते हैं ये, या growth regulators कहलाते हैं, ठीक है. तो ethylene is the plant hormone regulating the fruit ripening, and we know that this will be the correct answer because it is a this is a plant growth regulating hormone. The third category that comes under temperature. अब देखिए temperature cannot be, as we know that temperature will not be laid any kind of effect in the flowering of the pineapple specifically, ठीक है. और short days भी मुझे यहाँ पे appropriate सबसे सही जो लग रहा है वो आपको क्या है? B ऑप्शन है. Next to this, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए. Starch is a polymer of. The next question is about starch. As we know that starch क्या होता है? This is a स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट्स. मीन्स हमको क्या पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो लेते हैं वो उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. स्टार्च क्या होता है? इट इज अ पॉलीसैकेराइड. हाँ, इट इज अ वाइट कलर्ड टेस्टलेस सब्सटेंस होता है जिसको कि हम किसके अंदर रखते हैं? हमको ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1, दे आर कॉल्ड एज, the first group is monosaccharide, the second is called as oligosaccharide, and the third one is called as a polysaccharide. So here we can see that this starch is a polysaccharide and its building block is glucose, जो क्या होती है? एक hexose sugar होती है. So the correct option will be hexose sugar. Means hexose का मतलब हुआ कि 6 कार्बन की शुगर होती है, and pentose 5 कार्बन की शुगर होती है. तो 5 कार्बन की शुगर कौन सी होती है? रिबोस शुगर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? दिस आरएनए में पाई जाती है. डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होगा और राइबोस शुगर किस में होगा? तो आरएनए में होगा. सो हियर द सही ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टार्च. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपेंथोडियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक इनफ्लोरेसेंस ऑफ. अब देखिए हाइपेंथोडियम क्या होता है? तो ये एक तरह का, इट इज अ फ्लैशी रिसेप्टिकल फॉर्मिंग hollow cavity with an apical opening called ostiole. मतलब ये we are talking about the flower arrangement, the pattern. inflorescence किसको बोलते हैं हम? the arrangement of flowers को inflorescence कहते हैं, ठीक है. तो आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कि उसमें किस तरह से फ्लावर अरेंज होता है, ठीक है. जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर डेवलप्ड ऑन एन इनर वॉल ऑफ द हॉलो कैविटी. हाँ, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं टॉप में, जैसे आपको पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहा है. यू कैन सी हियर इन द फिगर इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं एट द टॉप नियर द ओपनिंग. एट द बॉटम आर सिचुएटेड द फीमेल फ्लावर्स. तो बॉटम में क्या होगा? फीमेल फ्लावर होगा. और टॉप में क्या होगा? कॉर्नर्स में आपको दिखाई देगा ओपनिंग में, तो मेल फ्लावर होगा विद अ लॉन्ग, एंड द फीमेल फ्लावर इज इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एक्सिस, ठीक है. एंड इन बिटवीन बोथ आर सिचुएटेड शॉर्ट स्टाइल्ड गॉल flowers which are sterile. So you can see here कि in between the male and the female flower lies the short styled gall flower जो कि sterile होते हैं, right? And here the example of the hypenthodium inflorescence is ficus, right? Fig is also shows दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. फिर सेकेंड पॉइंट हमारा जो होता है पाइनएप्पल का, जिसमें कि हमको क्या पता है इस पाइनएप्पल में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है या उसके फ्लावर्स में किस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है. तो स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है पाइन एप्पल में, राइट. नेक्स्ट टू दिस द थर्ड ऑप्शन मलबरी. मलबरी में क्या होता है? द मलबरी फ्लावर्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ कैटकिन विथ मेल एंड फीमेल कैटकिन्स ऑन डिफरेंट ट्रीज. तो अब आप ये देखिए कि इसमें मतलब एक मेल कैटकिन का अलग ट्री होगा, फीमेल कैटकिन का अलग ट्री होगा. मतलब मेल फीमेल फ्लावर एक साथ नहीं पाए जाएंगे किसमें? मलबरी में. फिर हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन आपका पॉन्स. क्या है ये? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज पॉइंसेशिया. पॉइंसेशिया जो होता है उसमें साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है. नाउ वी आर मूविंग. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फाइकस, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? You can see the instrument in the picture given here. It represent PCR, polymerase chain reaction, right?
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूनिट आपको दिखाई दे रहा है ये, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है. द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस दे आर about the table about the different types of centrifuge, like the tabletop centrifuge, cooling centrifuge, research centrifuge. So we know that centrifuge is somewhat different. A centrifuge consists of rotor and motor, and it has a different kind of the this you can say a different type of geometry, you can say. So here you can see that this is a figure of PCR. Now we are moving towards the next question. We have to find out the instrument given in the picture. So you can see here a box, and inside the box there consists of a rotor which holds the different types of the tubes. These tubes are called as the Eppendorf tubes. So we can see that this picture clearly states about the cooling centrifuge is the appropriate answer to this question, because it clearly resembles the cooling centrifuge. Next to this, then the next question, RBCs, about the red blood corpuscles, they are formed in. अब रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं वो कहाँ बनती हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होती हैं? तो दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. और बोन मैरो कहाँ पे होता है? तो दिस इज सिचुएटेड विद इन द फीमर बोन. हमको पता है कि सबसे लंबी जो हमारी हड्डी होती है फीमर बोन जो होती है, उसमें क्या होता है? वहां पे आरबीसीज, वहां पे बोन मैरो होता है जहां पे हमारी आरबीसीज जो होती है वो बनती हैं, राइट. देन एज वी नो दैट लिवर, अगर हमको पता है कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की, जो क्या करती है? इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन एंड द डाइजेशन. वेयर एज किडनी का क्या रोल होता है? तो किडनी क्या करती है? प्यूरिफाई करती है ब्लड को, और साथ ही साथ इट परफॉर्म द हार्ट. What heart does? Heart used to pump the blood and circulate it around throughout our body. So the appropriate answer to this question will be bone marrow. Next to this, अब आते हैं अपन next question में, the function of a ciliate cell are controlled by. अब देखिए, कोई भी सेल जो होती है उसमें उसका फंक्शन कौन कंट्रोल करने वाला होता है? उसका ब्रेन, which is the directory of the cell. And what is the term used for the directory of the cell? Yes, it is nucleus. As we know that nucleus is regarded as a directory of the cell which harbors DNA, right? And this DNA, it directs the function of the cell and its structure, also its structural entities, right? Cilia is a locomotory organ. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हियर द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ER, it is the site of protein and lipid synthesis. And the last option is contractile vacuole, जो क्या काम करता है? It help in maintaining the buoyancy of the cell. So according to this question, the correct answer will be nucleus. Next to this, question number 12, black bread mold is an example of. अब देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि फंजाई जो होता है वो इट फॉल्स अंडर 2 कैटेगरीज, एक होता है यीस्ट, एक होता है मोल्ड्स, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड की, कि ये कौन से क्लास ऑफ फंजाई के अंदर जो है वो इसको मतलब स्थान दिया गया है, इसको जगह दी गई है. तो दिस ब्लैक ब्रेड मोल्ड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेड लाइक फंगस राइजोपस स्टोलिनिफर, ठीक है. और ये किसको बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू जाइगोमाइसिटीज, ठीक है. अब देखिए, आप बोलेंगे जाइगोमाइसिटीज तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इसलिए आपको कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा कि जाइगोमाइसिटीज को हम किसमें, उनको और क्या कहते हैं? कॉमनली दे आर कॉल्ड एज थ्रेड लाइक फंगस, right? These grows as filamentous branching hyphae that generally lack cross wall and they are sinusitic, right? इनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म होता है इनमें. जबकि हम क्या देखते हैं? सैक लाइक फंजाई जो होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज. एंड क्लब लाइक फंजाई, दे बिलोंग्स टू बैसिडियोमाइसिटीज. एंड द लास्ट ऑप्शन, दैट इज फंजाई imperfecti or imperfecti fungus, it belongs to class Deuteromycetes. So here the black bread mold, they falls under the class Zygomycetes, which are commonly called as thread like fungus. Next to this, the 13th question, both animal like amoeba and plant like euglena reproduce. These are the following options. So as we know that this animal like amoeba and plant like euglena, they reproduce by asexually method following fission.
because they both belong to kingdom Protista and we know that the जब specific जो chief characteristic होता है Protista का वो क्या होता है that they follow the asexual mode of reproduction जिसमें कि fission के द्वारा क्या होता है वो मतलब आप clearly यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको binary fission का diagram लिखा हुआ है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक cell है वो mature होता है या it grows in size हाँ the protoplasm increases in size and likewise हाँ contraction takes place and it divide into two independent or two daughter cells. So here the correct answer will be asexually by fission. Now that question number 14. It is asking you about an antibiotic which inhibits translation in eukaryotes. Okay, so what is translation? As we know that the process of protein synthesis, it completed under two steps. Number one is the transcription and number two is translation. We know that transcription means the synthesis of messenger RNA from DNA. ठीक है, मतलब DNA से mRNA का बनना उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और जब वो mRNA जो होता है जब वो क्या बनाता है वो ट्रांसलेट करता है मैसेज को प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन कैसे बनेगा बाय द असेंबली ऑफ सिक्वेंशियल असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड से क्या होगा प्रोटीन का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूकैरियोट्स में ये कौन रोकता है तो कौन रोकेगा Translation is a process in which mRNA gets translated into protein. So it takes place in the cytosol in eukaryotes. ठीक है क्योंकि साइटोसोल में होता है यूकैरियोट्स में जबकि हमको क्या पता है so the appropriate antibiotic will be puromycin which are specifically used to block the protein synthesis or the translation in eukaryotes, right? Next question. The term gene was coined by whom? By whom? This gene term was coined by a Danish botanist Wilhelm Johansen. ठीक है और इन्होंने क्यों उसको coin किया था? To describe the Mendelian units of heredity. He also made the distinction between the outward appearance of an individual that is called as phenotype and its genetic traits that is genotype. So he was a person, he was a great scientist who डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ठीक है जेनेटिक ट्रेट्स जिनको हम कहते हैं और जो इंडिविजुअल अपीयरेंस होता है जो फिनोटिपिक कहलाता है उसके बीच में भी क्या किया था इन्होंने डिस्टिंक्शन किया था डिफरेंस बताया था और साथ में जीन टर्म भी कॉइन की थी। नेक्स्ट टू दिस The question number 16. Out of the total enzymes present in the cell, mitochondria जो होता है उसमें क्या होता है अलोन उसके पास कितने % एंजाइम्स होते हैं। जैसे देखिए हमने अगर पढ़ा होगा आपका एक थ्योरी आपने याद की होगी पहले या कहीं पढ़ी होगी जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे होंगे दैट इज रिलेटेड टू द सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जिस्टेंस है या उसका जो ओरिजिनेशन है प्राइमरली उसको बैक्टीरिया से लिया गया है या फिर बैक्टीरिया जो था ऐसा माना गया है कि वो आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हुआ right so here because mitochondria they are the semi autonomous organelles because they are having their own DNA right so that is why they will contain maximum number not up to 95 but they contain a suitable number of the enzymes to carry out the process of replication and their protein synthesis. So the mitochondria they are supposed to have been originated from bacteria and the unicellular what are bacteria? We know the bacteria are the unicellular prokaryotic organisms. So they are regarded as a semi-autonomous organelles, right? And they are capable of replicating their own DNA and synthesizing proteins. Thus they and the last option that is option number D will be the correct answer to this question that is they contain 70% enzymes. Coming towards question number 17. Which of the following vitamins promote healthy functioning of eyes in human beings? Answer, the correct answer is vitamin A. अब vitamin A क्या होता है? Vitamin A is also called as retinol. और क्या करता है ये? It plays a very crucial role in the vision by maintaining a clear cornea. जो हमारी आईज में जो कॉर्निया एक पार्ट होता है जिसको कि क्या करता है वो उसके क्लियरेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है विटामिन ए। एंड अब बात करते हैं हम कि विटामिन जो होते हैं वो दे फॉल्स अंडर टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब कौन से जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और कौन से होते हैं जो
फैट में घुलते हैं, ठीक है। सो द vitamins are of two types, the fat soluble vitamins and the water soluble vitamins. This vitamin A, D, E and K, these four types of vitamins falls under the category of fat soluble vitamins, and vitamin B and C, they are called as the water soluble vitamins. Moving towards the next question, question number 18. Which of the following disease is caused by virus? What we know that viruses are? The viruses are the acellular entities. They are called as the obligate intracellular parasites. So here दिए गए जो ऑप्शंस हैं आपके, उसमें से कौन सा एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? तो कौन है भाई? स्मॉल पॉक्स है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वैरियोला वायरस है स्मॉल पॉक्स एक, ठीक है। सो दिस इज कॉज्ड बाय द वैरियोला वायरस। जबकि ट्यूबरकुलोसिस क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, है ना। और ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। देन द सी कैटेगरी इज मलेरिया। मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जो द प्रोटोजोवन डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज, ठीक है। जबकि जो फोर्थ कैटेगरी है कॉलेरा भी क्या है? तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, मतलब कि बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज कॉज होता है। कॉलेरा जो होता है उसमें क्या कहते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया है और ये डिजीज को कॉज करता है, कॉलेरा को, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल डिजीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द इंस्ट्रूमेंट। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है आपको? जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है वो आपको पता चलाना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो हियर यू कैन सी दैट दिस रिजेंबल्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। So the correct answer is transmission electron microscope. Then next, identify the given instrument. अब देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है पिक्चर, उसमें A जो है वो क्या है? GLC. What is GLC? GLC को हम कैसे इसको दिस इज एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम एब्रीवेशन में लिख सकते हैं GLC. TLC is thin layer chromatography. HPLC is high pressure liquid chromatography. IR. So the C option is correct to this question. Next, question number 21. Cell organelles responsible for autolysis of cell. Autolysis का मतलब समझ में आता है आपको? Autolysis का मतलब होता है खुद से सेल जो होगी वो लाइस हो जाएगी, मतलब कि टूट जाएगी। तो खुद से सेल कैसे टूटेगी, उसके लिए कौन से ऑर्गेनील्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 1, डिक्टियोसोम्स के बारे में। क्या होते हैं डिक्टियोसोम्स? डिक्टियोसोम्स दे आर द स्टार्क्स ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज, राइट। These cavities are called cisternae, ठीक है। टुगेदर ये क्या करते हैं? गोल्जी apparatus का निर्माण करते हैं, यही जो सिस्टर्नीज होती हैं वो, ठीक है। अब हमको क्या पता होता है? विद इन डिक्टियोसोम्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, राइट। विद इन द डिक्टियोसोम्स द प्रोटीन आर स्टोर्ड, मॉडिफाइड, सॉर्टेड एंड पैक्ड इनटू वेसिकल्स। मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स क्या होंगे? स्टोर भी किए जाएंगे, उनका मॉडिफिकेशन भी होगा, उनकी पैकिंग भी होगी, वेसिकल्स के रूप में वो पैकिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आगे चलते हुए ये क्या करेंगे? दे आर क्लोज्ड ऑफ एज गोल्जी वेसिकल्स, ताकि वो आगे की तरफ और ट्रांसपोर्ट किए जा सके। तो डिक्टियोसोम्स किसका पार्ट हो गया? तो इट इज अ पार्ट ऑफ गोल्जी एपरेटस। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, thus they destroy the invading viruses and bacteria. तो यह बात जो हो रही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती है वो इनके अंदर होती है लाइसोसोम्स में, और इसी वजह से क्या होता है, वो क्या कर लेते हैं, उनके अंदर जो भी जैसे कोई ऑर्गेनिज्म पे अगर वायरसेस और बैक्टीरिया अगर इन्वेट करते हैं, हमला जब बोल के देंगे तो क्या हो जाएगा? ये लाइसोसोम से क्या कर लेते हैं? उसको बस्टिंग का काम करते हैं, लाइसिस का काम करते हैं। तो ऑटोलाइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? तो मेन रोल जो होगा लाइसोसोम्स प्ले करेंगे। तो सही आंसर इसका क्या होगा? लाइसोसोम्स, ठीक है। अब चूंकि आगे पढ़ते हुए हम देखते हैं पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स, थोड़ा सा इनका डिटेलिंग भी देख लेते हैं। तो व्हाट आर पेरोक्सिसोम्स? सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है पेरोक्सिसोम्स। ये ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? सो दीज ऑर्गेनील्स दे
ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये इन ऑर्गेनिल्स में मतलब कि प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का या डिटॉक्सिफिकेशन, सिग्नलिंग, इन सब प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात होती है पेरोक्सीसोम्स की कि बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड्स का वो इन्हीं में ऑकर होता है, पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू एम्ब्रियोजेनेसिस, सीडलिंग ग्रोथ एंड स्टोमेटल ओपनिंग। तो इस तरीके से जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है, जो प्रोसेस होता है, वो पेरोक्सीसोम्स में पाया जाता है। उसके बाद फिर जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्लाइकोक्सिसोम्स के बारे में। सो ये क्या होता है, दीज आर कन्फाइंड ओनली टू द प्लांट सेल, ठीक है, एंड द फिलामेंटस फंजाई। तो ग्लाइकोक्सिसोम्स ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं सेल के जो कि प्लांट में पाए जाते हैं और फिलामेंटस फंजाई में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि शुगर का सिंथेसिस करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोक्सिसोम्स में क्या होता है पर्टिकुलरली, तो ग्लाइकोक्सिसोम्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो टेक प्लेस होता है और जिसमें कि शुगर का सिंथेसिस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टू दिस 22 द केमिकल सब्सटेंस इन द कॉर्क सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है किसी प्लांट सेल की या बैक्टीरियल या फंगल सेल की। अब बात करता है कि जो कॉर्क सेल वॉल होता है तो वो कॉर्क जो होता है वो किसका बना हुआ रहता है, तो किसका बना होता है, तो ये सुबेरिन का बना हुआ होता है, ठीक है। सुबेरिन क्या होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीएस्टर होता है एक्चुअली सुबेरिन। जबकि लिग्निन क्या होता है, आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 है लिग्निन है। What is lignin? Lignin is a unique hydrocarbon comprising 8 to 20% of the secondary cell wall of the terrestrial plants. तो lignin कहाँ पाया जाएगा, तो सेल वॉल में पाया जाएगा, ठीक है। जबकि काइटिन क्या होता है, हमको पता है कि काइटिन क्या होता है, फंगल सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है। और क्यूटिन क्या होता है, तो क्यूटिन इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द क्यूटिकल सीलिंग ऑफ द एरियल एपिडर्मिस। जो क्यूटिकल कहाँ पाया जाएगा, कोई भी लीफ में या कोई भी प्लांट जो आपका होता है उसमें सबसे आउटर जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको शील्ड करने के लिए क्यूटिकल होता है, ठीक है। तो वो क्यूटिकल जो होता है दरअसल वो क्या हो रहा है, तो दिस क्यूटिन है ना उसको फॉर्म करता है, क्यूटिकल को फॉर्म करता है वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सभी चारों ऑप्शंस का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लिया। और करेक्ट ऑप्शन जो है मतलब इसका वो क्या होगा, सुबेरिन होगा। मतलब अगर ये आपसे पूछेगा कि कॉर्क सेल वॉल में क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो सुबेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टू दिस क्रिस्टलॉइड्स के बारे में पूछ रहा है कि क्रिस्टलॉइड्स जो है वो किन में देखे जाते हैं, किन में देखे जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एल्यूडॉन ग्रेन्स में, ठीक है। देखिए जब आप फार्माकोग्नोस्टिक स्टडीज परफॉर्म करते हैं कोई प्लांट मटेरियल की, तो आप देखते हैं कि आप अलग अलग तरह की क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यू यूज सुडान 3, यू यूज फ्लोरोग्लूसिनॉल, या आप अलग अलग तरह के जैसे सोडियम H2SO4 यूज करते हैं, या इनका आप प्लांट मटेरियल को लेकर के उसको उस पर्टिकुलरली ये सारे डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स को उसमें ट्रीट करते हैं और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं ना वो कैरेक्टर किसका होता है, वो एल्यूडॉन ग्रेस पर दिखाई देता है। जबकि रैपिड्स है वो और भी तमाम तरह के जो है दूसरे प्लांट मटेरियल में आपको देखने को मिलेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एल्यूडॉन ग्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है और आपको देख के बताना है कि ये क्या किसका डायग्राम है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दिस आइडेंटिटी आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपका ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये इट इज वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं जिसमें आप pH चेक करते हैं, राइट। तो हियर बिकॉज डिजिटल यहाँ पे रीडिंग शो कर रही है तो द करेक्ट आंसर विल बी द डिजिटल pH मीटर। देन नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट नेम। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे ऊपर में एक मॉनिटर मतलब डिस्प्ले लाइक मॉनिटर आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे ऐसे कुछ आपको सो दिस इज द फिगर ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। अब हमको क्या पता है कि नॉर्मली हमको ये पता है कि आपका जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपको दिए गए फिगर में हम ये देखते हैं कि हम हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इन फ़ारेनहीट। वी नो दैट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 फ़ारेनहीट। सो ऑन एवरेज अगर हम ये देखें तो 97.7 फ़ारेनहीट जो होता है वो एक क्या होता है,
नॉर्मल मैन का बॉडी टेम्परेचर होता है इन फ़ारेनहीट एंड इन डिग्री सेल्सियस इट इज 36.9 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको ये पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 फ़ारेनहीट। तो आप जब उसको कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट दिस फाइनल रीडिंग ऑफ 97.7 फ़ारेनहीट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट और द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द क्वेश्चन अबाउट अ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ये फिगर आपको दिखाई दे रही है जो, तो आपको ये बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो दिस इज अ ऑटोक्लेव एंड व्हाट इज द चीफ रोल ऑफ ऑटोक्लेव? तो दिस इज अ very important instrument which is used in the sterilization of the glasswares and in the sterilization of the culture media. And this autoclave, it is based on the प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। जिस तरह से अपने घर में आप जो है वो प्रेशर कुकर यूज करते हैं, उस तरीके से आप क्या करते हैं, सेम प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और इसमें एक आइडियल टेम्परेचर लगता है, वो क्या होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 15 एलबीएस मतलब 15 मीटर बाइट उसका जो प्रेशर होता है। इस प्रेशर पे 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, कोई भी गिवन सब्सटेंस को ऑटोक्लेव करते हैं या उसको माइक्रोब फ्री करते हैं। तो दिस इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स एंड कल्चर मीडिया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग। एज वी नो दैट हमारी बॉडी 70% वाटर से मिलकर बनी है, और हमारी जो ब्लड एवरेज जो एक मतलब एडल्ट ह्यूमन बींग में या नॉर्मल ह्यूमन बींग में जो ब्लड का वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 5 to 6 लीटर्स होना चाहिए, right? Now the last question of this quiz, name out the instrument. So this is the picture of Fourier transform infrared spectroscopy. I hope you will find this discussion cum analysis of the different options appropriate, or you will find it helpful to enhance your knowledge. Thank you so much for patiently hearing. Have a nice time.